A case of necrosis of nasal septum. A young girl, aged 22 years, very beautiful features, smiling face, well dressed, came with her x ray, and the doctors diagnosed the case of necrosis of nasal septum early stage. ENT specialist recommended surgery, but her father took her to an Ayurvedic clinic. But doctor told that it is best to go for surgery as early as possible. Then her father took her to consult a homeopath who ensured the cure. But after taking various homeopathic medicines for 4 months, he recommends Sir's name. Past history of the disease: 4 years ago, when she was taking coaching for UPSC exam after passing out science graduation with 85% marks, she got coryza and a running nose. All treatments give her temporary relief, but she carried on her studies to fulfill the desire of her father, who was a senior manager in a bank. Her father told that it was his dream to become an IAS but couldn't succeed, so he brought up her in such a way so that his daughter my daughter could be an IAS. She was topper in school and college, very dull, dutiful, obedient. I gave her every facility and encouragement to her alone for last 10 years. Sir asked what happened to her mother. Divorce, she was arrogant. He replied. I read the face expression of the girl when her father was telling the story, sad, sunken, and smiling. I asked her about her likes and hobbies. She replied with a smile, but her eyes were not showing me any charm when she was telling her sufferings. Although she replied to all my questions with a smile and laugh, but her tone was lacking happiness. I gave her 3 doses in 30 potency, only placebo for 2 months. Slowly and steadily, her all ailments cleared before main exam. She came after 4 months. When she got interview letter, she came with her father and mother this time and hugged me with tears in her eyes and said, "Now I am bold enough, sir." End of the case. Good evening to everybody. I am very thankful to all the homeopaths who are taking interest in learning and sharing the experience. We both we can learn from our mistakes, we can learn from others. So in today's case, you all have read and listened the case. ये जो केस है आज का बहुत सा इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और किसी ने भी जितने भी डॉक्टरों ने केस आज एनालाइज करने की कोशिश की है किसी ने भी मेरे केस की बिगिनिंग और केस की एंडिंग को नहीं देखा जिसमें मैंने लिखा कि शी इज गिविंग द रिप्लाई with a smile, involuntary smile. Whenever I saw her, when I asked her anything, first she smiled and smiling while talking. This is the important point in this case. In such case, second point, it is very easy to treat the case coming from our allopathic system. We can choose the rubric, we can apply our medicine and our knowledge. Those cases which are coming from allopathy and Ayurveda or mixopathy, they are more bit difficult. But those cases which are coming from homeopaths, allopathy, Ayurveda, and then from homeopathy, in such cases, your knowledge of materia medica did not work if you don't have your own intellect and application of your art.
Most of the doctors selected the medicine carcinosin, agnesia, natramur, and some other polycress. As most of you selected those medicine, I assume in this case that homeopath which recommended my name to the patient, he might prescribe those medicine. So when I reprise that case, I try to avoid those medicine and try to go deep into that. Astonishingly, no doubt, the caste factor, separation of father and mother, she is not, he said she is arrogant. In one word, in one line, he said arrogant. And it is our imagination that if both father and mother they are egoistic, arrogant, quarrel in front of their children, on what would be the action, what would be the emotional disturbance of that girl. But however, she tried to adjust according to her father's will until and unless her vital force, her defense mechanism, her immunity was strong, she did not develop any physical symptom. We can imagine how she coped with such a strong father, adamant father, who is putting pressure constantly on her to do this or that, to achieve this target. Carcinosin is a best suited medicine for such cases. But the reaction of that girl in front of me rule out carcinosin. In carcinosin case, if she would be a carcinosin, then she has to told all her misery and history, but she did not speak anything about her past. Her father gave me the answer. It means she, her grief, her emotional disturbance is silent. She bear all things silently. But on the other hand, she is doing her best to achieve. It means she is a metal. She is a metal. Very difficult to mold the metals. But what is the result of that? Pressure, emotional disturbances. She achieved good marks in every exam. She is doing her best to get through the UPSC, but the change in temperature or change in the coaching center resulted in running nose. Here you can say, हम कह सकते हैं कि उस लड़की की सहन शक्ति, जो उसके शरीर के अंदर ताकत थी, जो उसकी वाइटल फोर्स है, जो उसकी इम्यूनिटी थी, जो अभी तक लड़ रही थी एवरी ऑड थिंग्स, वो एक छोटे से exciting guys. It might be air condition, it might be
the surrounding of the coaching center, colleagues, classmates, class fellow, many things happened, but the running nose, अब मैं जो बात समझाने जा रहा हूँ होम्योपैथ को कि 8 वीक है, हमें इमेजिन भी करना आना चाहिए कि ये जो नाक से पानी बहता है, ये केवल कुराइजा या कटार भी नहीं हो सकता। कई बार हम रोते हैं, रो भी नहीं सकते, या रोते रोते आंसू सूख जाते हैं, रुक जाते हैं। लैक्रीमेशन, हमारी आंखों का जो आंसू बहने चाहिए वो नोज की तरफ बहने शुरू होते हैं। रनिंग नोज, आंखों से भी आंसू बह रहे हैं, उसके नाक से भी होते हैं। जब बच्चे रोते हैं तो देखने वाले होते हैं, उनकी आंखों से भी पानी और उनके नाक से भी पानी बहना शुरू होता है। तो ये भी कारण हो सकता है कि उस लड़की को, जो उसके कुलीग, उन्होंने सवाल पूछे हों, कैसे है मम्मी, कैसे है, उसके जो, ये सभी चीजें इमेजिन की जा सकती हैं। लेकिन जैसे ही उसका रनिंग नोज हुआ, उससे कारण क्या हुआ? डिस्टर्बेंस इन हर ड्यूटी। वो अचीव जो करना चाहती, जो पढ़ना चाहती थी, उसमें डिस्टर्बेंस आई। उसके लिए उसने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। तो डेफिनेटली पहला ट्रीटमेंट एलोपैथी, इट माइट बी सिट्राजिन, it might be prednisolone or any steroids or anything given by the allopath, and within few days that discharges start destroying the nasal septum. We can see how the pathology occurred suddenly, necrosis. So in such cases, when we are selecting the mental symptom causal factor, it is very important to know the progress of disease, the path of disease. Today, in today's case, every doctor pick up the right cause. Disciplinary father, strict father, emotional disturbance. Now we can imagine कि एक लड़की 8th या 9th क्लास में पढ़ रही है, 12-13 साल की लड़की की माँ और बाप पहले झगड़ते हैं, फिर डिवोर्स हो जाता है, और अब वो डिवोर्स में पिता जो है वो उसको पालता है। वो लड़की के पास क्या ऑप्शन है? बाहरी तरफ के ऊपर वो तो फादर के रहेगी, लेकिन भीतर से वो अपनी माँ से बिछड़ चुकी है। उसको लगता है कि मुझे मेरी माँ छोड़ गई, मेरी माँ ने मेरी तरफ अप्रोच नहीं किया, लेकिन वो चल रही है। तो अब वो जो रुकी हुई उसकी डिफेंस मैकेनिज्म थी, जो अंदर उसके नेगेटिव चीजें रुकी हुई थी, जो उसके डिस्चार्जेस बाहर आने चाहिए थे उस समय, जो उसने रोक कर रखे थे, रॉबस्ट बन के स्ट्रॉन्ग थी, वो उन्होंने नाक, अब नाक क्या है हमारी, उसकी नाक कट गई, मेरी नाक कटा दी गई। मैं कि इज्जत का सवाल भी उसके सामने आ गया कि अगर मैं अब यूपीएससी में नहीं कर पाऊंगी क्वेश्चन तो मेरी इज्जत खराब होगी, या उससे जो सवाल पूछे गए होंगे उसको ये भी लगा, इसलिए उसके नाक के ऊपर वो कुराइजा शुरू हुआ है। अगर वही लड़की इस डिप्रेशन में या इस में नाक का सवाल ना बनाती, गुस्सा होता, तो हो सकता है कि उसका लिवर इफेक्ट होता है, उसके किडनी इफेक्ट हो सकते, लेकिन यहाँ क्या हुआ? नाक।
उसकी प्रतिष्ठा, उसकी डिग्निटी अभी तक जो कॉलेज में स्कूल में सारा कुछ अचीव करती आ रही थी, अब वो सारी दाव के ऊपर थी। तो ऐसी बातों ये जब हम डीपली सोचेंगे कि कितनी हमारी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, तो तभी हम उसके कोर को पकड़ पाएंगे। मैंने भी उसके कोर को ये पकड़ कर कि कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं, जो मैंने देखा है कि मैंने उसके लाइकिंग डिसलाइकिंग वो कैजुअल था और उसने फट से जवाब दे दिए। लेकिन उस लड़की ने, अब देखिए क्या है कि वो स्माइल करके, अगर हम सिंथेटिक रेफ्री में देखेंगे तो स्माइलिंग इनवॉलंटरली 3 मेडिसिन है, बेलाडोना, लाइकोपोडियम एंड ऑरोमेटेलिकम। बेलाडोना पेशेंट इज ए फ्रिवलेस इन नॉन सीरियस, वो हंसते रहते हैं, हंसी ते फंसी, मुस्कुराना, सुंदरता, थोड़ा सा भी किसी की आंखें नजर गई तो वो मुस्कुराएंगे। बेलाडोना वो डीप नहीं होते। लाइकोपोडियम स्माइल करता है किसके लिए? वो सेल्फिश होता है लाइकोपोडियम, अपना मतलब निकालने के लिए वो आपको हंसकर भी दिखाएगा, भी शायद यहां से मुझे कुछ मिल सकता है तो हंसकर दिखाएं, तो ये वो प्लीजिंग करता है। लेकिन एक और पेशेंट जो है वो अपने भीतर के दुख को, अपने आप को होल्ड रखकर भी भीतर से दुखी होता है, लेकिन वो फिर भी स्माइल करता है। अब मैंने नाम भी ले दिया दवाई का, ऑरोमेटेलिकम मेरी मेडिसिन थी। अब ऑरोमेटेलिकम क्या है? सबसे प्रीशियस, कितनी महंगी धातु है, और गोल्ड को कोई तेजाब उसको डिजॉल्व नहीं कर सकता। उसके ऊपर ना सल्फ्यूरिक एसिड, ना उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ना उसके ऊपर नाइट्रिक एसिड या कोई एसिड उसके ऊपर असर नहीं करता गोल्ड का। लेकिन गोल्ड को मोल्ड करने के लिए, गोल्ड को डिजॉल्व करने के लिए एक्वा रेजिडुआ जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है, इट मीन्स कि ये जो कितना लंबा समय वो हमारा गोल्ड, जो लड़की वो गोल्ड थी वो रही, लेकिन जैसे हुआ तो उसका नेक्रोसिस अब गलना शुरू हो गया। तो मैंने उसका जो स्माइलिंग था, जैसे मैंने देखा कि स्माइल करती थी लेकिन उसकी आंखों में वो बेलाडोना जैसी चमक नहीं थी, ना ही ऐसा कुछ था। तो मुझे भीतर में, अब वो जो उसके बाप ने कहा कि वो एरोगेंट थी, अब वो जवान लड़की के मन के ऊपर क्या असर हुआ होगा उस समय भी। इसका मतलब कि वो लड़की मुझसे अपने सारे दुख छुपा कर आई है, इसलिए। कौन? वो नहीं आई, उसका बाप लेकर आया है, क्योंकि सर्जरी करवाने से वो डरता है। उसने ऑप्शन ढूंढा कि अच्छा ऑप्शन भी हो जाए। तो ऐसी ऐसे केसेस में एक होम्योपैथ को नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, मटीरिया मेडिका का, पैथोलॉजी का सारा नॉलेज हो, रेप्टाइजेशन भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमें हमारी सोसाइटी में क्या कुछ होता है, हमारी भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं। जैसे वो रेफ्री में एलिमेंट्स आफ्टर रूब्रिक आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। इसलिए उन अगर हमने वो रूब्रिक पढ़े हैं, उनको जानते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ। और ऑर्गेनन में ये साथ में ये भी है, प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। अब ठीक है, माइंड के कारण होम्योपैथ किसी ने, जिसने वो अग्निशिया भी दी होगी, नेट्रोम्यूर भी दी होगी, कार्सिनोसन भी दिया हो सकता है, जो होम्योपैथ ने 4 महीने उसको ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचा। टोटलिटी सिमिलीमम नहीं थी, इसलिए वो सुपरफिशियली वो काम कर रहा है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो अब वो अच्छा होम्योपैथ था, जैसे आज आप और हम सीख रहे हैं
आप में से बहुत से सीनियर होंगे, बहुत से तजर्बेकार होंगे, जिनका तजर्बा मेरे से भी ज़्यादा होगा। तो मुझे अगर पता लगे कि फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है आपके पास, मेरे से केस नहीं ठीक हो रहा, तो एक अच्छा होम्योपैथ अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए रिकमेंड करता है। उसने रिकमेंड कर दिया, लेकिन उसने ये लिख कर ना भेजा कि ये मेडिसिन मैंने दी है। अब वो मेरी इमेजिनेशन। तो एक होम्योपैथ के लिए जब नॉलेज ऑफ मेडिसिन, नॉलेज ऑफ डिजीज, उसके साथ साथ उसको नॉलेज ऑफ सोसाइटी और नॉलेज ऑफ साइकोलॉजिकल इमोशनल डिस्टर्बेंस, कितने रंग हैं हमारे लोगों के, कितनी भावनाएं हैं हमारी। एक बेटी की क्या भावना हो सकती है, एक औरत की क्या भावना, वो औरत जब माँ है तो क्या सोचती है, वो औरत जब पत्नी है क्या सोचती है, वो औरत जब बेटी है तो क्या सोचती है, वो औरत अगर प्रेमी प्रेमी के साथ प्रेमिका बनकर गुजर रही है तो क्या सोचती है, क्या डिस्टर्बेंसेस होती हैं। इन चीज़ों को हमें जानना चाहिए, और इन चीज़ों को जानने और समझने के लिए पुराने ज़माने की जो हिंदी मूवीज़ हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल हो, वो देखा करो। अगर मैं इस केस को डेफिनेटली, मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू द मास्टर हैनेमन, जिसने हमें एक ऐसी साइंस दे दी जिससे हम इनक्योरेबल केस को भी क्योरेबल कर लेते हैं। बहुत कुछ जहाँ साइंस कुछ नहीं कर पा रही, होम्योपैथ बहुत कुछ करते हैं। वो यही है कि वो जो हमें की दी गई है, चाबी दी गई है, वो जो की सिम्टम है। तो मेरे केस में मैंने जो पहले पैरे में और लास्ट पैरे में लिखा था, स्माइलिंग इनवॉलंटरली, वो मेरी चाबी थी। फिर जब मैंने रेफ्री में और गोरख में नेक्रोसिस ऑफ नेजल बोन पढ़ा, तो वहां और मेट पड़ी हुई है, जबकि अग्नीशिया नेट्रोम्यूर वहां नहीं है। बेशक ये दोनों दवाइयां डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ में बहुत है, लेकिन औरम मेटेलिकम का ग्रीफ इतना डीप होता है कि वो सारा कुछ सहन करके ड्यूटीफुल है, वेरी डेलिजेंट, वेरी ड्यूटीफुल। उसके लिए हर हाल में अपनी कीमत बरकरार रखनी है। सोना कभी भी नीचे नहीं गिरना चाहता। सो इसलिए वो जब ये सारी चीजें आई तो मैंने औरमेट 30 दी और वो केस ठीक हुआ। अब उस केस में देखिए ठीक क्यों मैंने कहा क्योर, अगर केवल उसका नेजल सेप्टम ठीक होता है या कोराइजा ठीक हो जाता, वो मेरे पास ना आती। दो ही बातें थी, यहाँ तो वो बल्कि किसी और जगह चल गई या ठीक हो गई, लेकिन वो आई है, मुझे मिली है और अपनी मम्मी और पापा को। इसका मतलब कि वो तब इतनी बोल्ड हो गई, उसने अपनी वैल्यू को इतना पहचान लिया, इतनी स्ट्रांग हुई। ये है होम्योपैथिक क्योर, कि जब क्योर हो जाएगी तो वो राइट डिसीजन भी लेने वाली बन सकते हैं पेशेंट। तो ऐसे केसेस हमारे पास बहुत से आते हैं, जैसे स्टेफिस पेशेंट जो होते हैं, जो कभी अपने मन की बात नहीं कह पाते, सभी की सुनते हैं, इंसल्ट भी सहते हैं, लेकिन उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर जब स्टेफिस दिया जाता है, उनकी इम्पोर्टेंसी तो ठीक होगी, साथ में सोसाइटी में बात करने का कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, तभी वो क्योर है। तो आज के केस में मैं फिर कहूंगा, ऑर्गेनन अगर आपको नहीं समझ पड़ी कि मास्टर हैनेमन हमें क्या कहना चाहता है, भूल जाइए सोरा सिफिलिस साइकोसिस को, मियाज्म है या नहीं है उसको मत यही। लेकिन ये पक्की बात है कि एक बीमारी कहां से चलकर कहां तक जाती है, कौन कौन से रास्ते से होकर कहां पहुंची है, तो हमारे केस में सिमिली बब भी वही होनी चाहिए। पार्शली सिलेक्टेड मेडिसिन वक्ती तौर पर तो हमें ठीक कर देती हैं, आराम देती हैं पेशेंट को, लेकिन लंबे समय पर वो जो पैथोलॉजी नहीं ठीक कर पाती, जहाँ और चीजें, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं हम उसके
डेप्थ में नहीं जा पाते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो आज के केस में वो 2 डॉक्टर, मैं बहुत ही उन दोनों बच्चियों का, श्वेता मुडादा और वो डॉक्टर पाटिल, उन्होंने उसमें चार्ट में ले आई मेडिसिन आगे, लेकिन देखिए कॉन्फिडेंस फिर वो होता है कि कार्सिनोजन में और में कहाँ एक 2 मेडिसिन तो आ गई, लेकिन एक कैसे करनी है वो हमें वो जो की सिम्टम है। और ये फिर मैं वो रूब्रिक बता देता हूँ, और बहुत से मैंने अप्लाई किए, खासतौर पर मैं लाइकोपोडियम और मेटालिकम। इनवॉलंटरली स्माइलिंग, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट। जेस्चर, इसको हम कहते हैं जेस्चर। आपके सामने पेशेंट बैठकर कैसे काम करता है, वो जेस्चर वाले रूब्रिक को मास्टर कीजिए, उसको मेमोराइज करें, उसको बार बार देखिए कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ, ये मेरा ट्रेट है। वो कितना के डिस्टर्ब होता है बीमारी में। अब वो लड़की देखिए कि कम से कम भी 8-10 साल, 9th 10th, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद अब वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, हाईली एम्बिशियस, हाईली स्टूडियस, बहुत अच्छा उद्देश्य रखकर। लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि ऑरोमेट जो है सुसाइडल टेंडेंसी होती है, वो सुसाइड कब करता है, थॉट्स कब आने शुरू होते हैं। ऑरोमेट में हमेशा सुसाइड नहीं होगा, वो तभी सुसाइड की तरफ जाना चाहेगा जब उसके बस में नहीं रह रहा है, जब उसको लगता है कि अब मेरी ताकत अंदर से कम हो रही है। तो ये लड़की बजाय के डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ की तरफ जाती, उसकी वाइटल फोर्स ने डिस्ट्रक्शन ऑफ नेजल बोन, वो कोई और हिस्सा भी डिस्ट्रॉय हो सकता था, लेकिन उसने जो, क्योंकि ये जो कार्टिलेज होती है यहाँ, ये सेप्टम थोड़ा सा इजी है इसको अटैक करना है, तो वहाँ आए। तो ये आज के केस की बात थी। क्यों ऑरोमेट सारे वो चार्ट में रूब्रिक है, डिसअपॉइंटमेंट भी है उसकी। अब देखो कि वो लड़की माँ को लेकर आती है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं भीतर में वो बाप के सामने अड़ नहीं सकती थी। साइलेंटली ग्रीफ, साइलेंट ग्रीफ नेट्रम्यूर से भी ज्यादा डीप है। और ये डेप्थ देखनी हो तो हमारे पास एक मेडिसिन है ऑरोमेटिकम नेट्रिकम, जिसमें ये दोनों तीनों चीजें आ जाती हैं। उसमें नाइट्रिक एसिड का नेट्रम भी है, उसमें मेरेटिक उसका म्यूर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी है, और उसमें गोल्ड भी है। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ ऑरोमेटालिकम मेरी दवाई निकली और मैंने वो केस ठीक किया। वो लड़की अब एसजीएम लगी हुई है यहाँ हमारे महेंद्रगढ़ में, हरियाणा में। लेकिन जो वो लड़की मेरा थैंक्स करने आई, इसका मतलब कितनी इंटेलिजेंट है, उसकी नेगेटिव, उसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज नहीं आई। तो ये केस था। जो भी आपके कोई सवाल होंगे मैं जरूर उनका जवाब दूंगा। अभी जो मैंने आपसे बात की है, मैं थोड़ी देर के बाद वो टाइप जो किया हुआ है, ताकि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं आ पाए वो उसको पढ़े सीखें। होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है, रोजाना इसमें नए से नया हम सीखते हैं, नया से नया कुछ ग्रहण करते हैं। सभी को सलाम, सभी को दुआ है, मेरी बेस्ट विशेज है। फिर मैं वो दोनों डॉक्टरों को, उन बच्चियों को आशीर्वाद देता हूँ कि इस तरह से उनका इंटेलेक्ट और भी बढ़े। धन्यवाद। प्लीज कन्वे माई ब्लेसिंग टू बोथ डॉक्टर पाटिल एंड डॉक्टर मुडाडा। क्लास में है दोनों डॉक्टर्स? हाँ हाँ, इसमें ये है, मैंने उनका दिया भी है, सविता मुदादा है, और अच्छा सर, और वो उनका मैसेज आया कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। तो बहुत अच्छा मजा आया इन चीजों का। और थैंक्स अशोक। अशोक, आपके लिए तो मेरा स्पेशल प्यार है कि आप मुझे मजबूर करते हो कि मैं कुछ आपसे सीखूं और कुछ आपको सिखाऊं। इसी तरह से ये हमारा रिश्ता बना रहे।
धन्यवाद। ठीक है बच्चे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। थैंक यू ऑल मेंबर्स। सीखिए और बढ़िए। थैंक यू। Hello, dear doctors. HSH is teaching basic mind method to all the learners since the past few months. Now, our mentors who are in practice since more than 20 years have come up with an advanced study course from July onwards. Advanced course with HSH brings you detailed study of remedies, in-depth study of rubrics and their application in cases acute as well as chronic. We also study the cross reference of rubrics and metaphoric meanings with cases daily. If you are interested to join the advanced course study with HSH, kindly contact Dr. Ashok Avadhia. The phone number is given below. The course starts from July onwards. Thank you.